தமிழ் மேட்ரிமோனி ஆடி ஆஃபர் இப்ப மெம்பர்ஷிப் எடுங்க, ஆடில ஃப்ரீயா யூஸ் பண்ணுங்க. போராட்டத்தை சிஜேபி திரும்ப பெற்றதாக அறிவித்திருக்கிறார்கள். அமைச்சர்கள் மற்றும் கரப்பான் ஜனதா கட்சியினரிடையே நடந்த பேச்சுவார்த்தைக்கு பிறகு கூட்டாக செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர்கள் தங்களது போராட்டத்தை திரும்ப பெறுவதாக அறிவித்திருக்கிறார்கள். தர்மேந்திர பிரதான் ராஜினாமா என்ற தங்கள் முதல் கோரிக்கை ஏற்கப்பட்டுள்ளது. மாணவர்கள் மீதான வழக்குகளை ரத்து செய்வதாக மத்திய அரசு உறுதியளித்திருக்கிறது. கரப்பான் ஜனதா கட்சி பொறுப்பாளர்கள் மீது வழக்குகள் பதிவு செய்யப்படாது என்றும் அரசு உறுதியளித்திருக்கிறது. எனவே தாங்கள் போராட்டத்தை திரும்ப பெறுகிறோம் என்று கூறியிருக்கிறது கரப்பான் ஜனதா கட்சி. கரப்பான் ஜனதா கட்சி பொறுப்பாளர்கள் மீது வழக்குகள் பதிவு செய்யப்படாது என்று அரசு சார்பாக தெரிவித்திருப்பதாக கூறியிருக்கிறார் கரப்பான் ஜனதா கட்சியைச் சேர்ந்த சௌரவ். இதன் காரணமாக மாணவர்கள் போராட்டம் திரும்ப பெறப்பட்டதாக அவர்கள் அறிவித்திருக்கிறார்கள். டெல்லி ஜந்தர் மந்தரில் கரப்பான் ஜனதா கட்சியினர் தொடர் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வந்தனர். நீட் தேர்வு வினாத்தாள் கசிவு விவகாரத்திற்கும் தேர்வு முறைகேடுகளுக்கும் பொறுப்பேற்று மத்திய கல்வித்துறை அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் பதவி விலக வேண்டும் என்பது உள்ளிட்ட பல்வேறு கோரிக்கைகளை முன்வைத்து அவர்கள் போராட்டம் நடத்தி வந்தனர். அந்த போராட்டத்தின் எதிரொலியாக இன்று தர்மேந்திர பிரதான் பதவி விலகுவதாக அறிவித்திருந்தார். இன்று 3ஆம் கட்ட பேச்சுவார்த்தை மத்திய அமைச்சர்களோடும் கரப்பான் ஜனதா கட்சியினர் நடத்தினர். அந்த பேச்சுவார்த்தையில் தர்மேந்திர பிரதான் ராஜினாமா என்ற தங்களது முதல் கோரிக்கை ஏற்கப்பட்டுவிட்டது. அதேபோல மாணவர்கள் மீதான வழக்குகளை ரத்து செய்வதாக மத்திய அரசு உறுதியளித்துள்ளது. கரப்பான் ஜனதா கட்சி பொறுப்பாளர்கள் மீது வழக்குகள் பதிவு செய்யப்படாது என்றும் அரசு உறுதியளித்திருக்கிறது. நீட் தேர்வு குறித்த மன விரக்தியில் உயிரிழந்தோரின் குடும்பத்திற்கு இழப்பீடு வழங்கப்படும் என்றும் மத்திய அரசு கூறியிருக்கிறது. தங்களது 3 கோரிக்கைகளையும் மத்திய அரசு ஏற்றிருக்கிறது. இதனால் எங்கள் போராட்டத்தை திரும்ப பெறுகிறோம் என்று அறிவித்திருக்கிறது கரப்பான் ஜனதா கட்சி. கரப்பான் ஜனதா கட்சி முன்வைத்த 3 கோரிக்கைகளை மத்திய அரசு ஏற்றிருக்கும் காரணத்தினால் தங்கள் போராட்டத்தை திரும்ப பெற்றது கரப்பான் ஜனதா கட்சி. लेकिन अभी हम तमाम हमारे जो भी सपोर्टर्स हैं, प्रोटेस्टर्स हैं, जो अलग अलग जगहों पर मौजूद हैं, जंतर मंतर पर मौजूद हैं, उनसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि पीसफुली विड्रॉ करें. देखिए हम लोग पहले से ही कॉन्फिडेंट थे कि ये जो आंदोलन है ये युवाओं का आंदोलन है, जो इस देश का फ्यूचर है उनका आंदोलन है. एंड कोई भी ताकत हो वो देश के फ्यूचर के सामने अड़ी नहीं रह सकती. हमारे जो डिमांड्स थे कोई रेवोल्यूशनरी कोई रेडिकल डिमांड्स नहीं थे. जो बेसिक मिनिमम अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए था उसकी मांग थी. जो फैमिलीज के बच्चे नीट के लीक के वजह से सुसाइड करके मर गए उनके डिग्निटी के लिए ये आंदोलन था. एंड साथ साथ जो प्रदर्शनकारी थे जिन्होंने इन डिमांड्स को आगे रखा उनके खिलाफ सरकार या उनकी एजेंसीज कोई एक्शन ना ले वो डिमांड था. ये तीनों डिमांड बहुत रीजनेबल डिमांड्स थे एंड बहुत ज्यादा टाइम लग गया इस चीज को एक्सेप्ट करने में, लेकिन हम खुश हैं कि ये सारे डिमांड्स एक्सेप्ट हुए. एक मिनट आप बताइए. कुछ ऐसे सामाजिक तत्व आ गए थे जिसकी वजह से आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश की गई थी. देखिए इस आंदोलन को तो पहले दिन से बदनाम करने की कोशिश की जा रही है. आप सभी लोग देख रहे हैं कि किस तरह से आम लोगों पर भी अलग अलग टैग्स लगाए गए, एंटी नेशनल बोला गया, पाकिस्तानी बोला गया. लेकिन हमें बहुत खुशी है कि इस देश के युवा ने सच्चाई देखी, इस देश के युवा ने हमारा इंटेंट देखा और जिस मुद्दे के लिए हम लोग लड़ रहे थे उस मुद्दे से सभी लोग रेजोनेट किया और बहुत पीसफुली 37 दिन से हम लोग जंतर मंतर पर मौजूद रहे. सब कुछ बहुत पीसफुली हुआ और हमें बहुत खुशी है कि अब हम लोग जब विड्रॉ करेंगे तो वो भी बहुत पीसफुली होगा. नहीं देखिए हम लोगों ने स्टार्टिंग से जो भी पॉपुलर जनता पार्टी के सपोर्टर्स हैं बहुत ही पीसफुल पढ़े लिखे सपोर्टर्स हैं, बहुत ही समझदारी से उन्होंने अपने आप को कंडक्ट किया. ये बात आपकी सही है कि कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स स्टेज के पिछले लास्ट के कुछ 3-4 दिनों में घुसे हैं जिन्होंने वहां पर माहौल खराब करने की कोशिश की. लेकिन तमाम दिक्कतों के बावजूद ना सिर्फ एंटी सोशल एलिमेंट्स बल्कि तमाम जो दिक्कतें हमने पिछले 37 दिनों में फेस की है उन सब के बावजूद हम लोग वहां पर डटे रहे, हमारे युवा वहां पर डटे रहे और
आज फाइनली 37 दिन बाद हमारी मांगे मान ली गई। इसी में एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, जिन्होंने भी ऐसा एंटी सोशल एलिमेंट्स ने मीडिया के खिलाफ, लोगों के खिलाफ, जिन्होंने भड़काया, जिन्होंने ये वायलेंस किया, ऐसे लोग सीजेपी के सपोर्टर नहीं है। ये एंटी सोशल एलिमेंट्स घुसाए गए। हम लोग ऐसे एक्शंस के लिए हम लोग उनको खंडन करते हैं। लेकिन आपके माध्यम से ये मैं जरूर कहना चाहता हूं, रिपोर्टर्स नहीं, लेकिन जो मीडिया के ओनर्स हैं एंड जो एंकर्स हैं और जो एडिटर इन चीफ्स हैं, उनको मिलके एक डिस्कशन करना चाहिए कि युवाओं के अंदर उनके खिलाफ इतना आक्रोश क्यों है। क्योंकि आप ये जरूर समझ लीजिए, जिस तरीके का प्रोपेगेंडा चलाते हैं कुछ चैनल्स, उससे लोग खुश नहीं है। एक ना एक दिन ऐसा आएगा जब युवा ऐसे ही डिमांड लेके आगे बढ़ेगा एंड उस टाइम पे उनका भी आंसरेबिलिटी बिल्कुल जस्टिफाई नहीं होता है, बिल्कुल जस्टिफाई नहीं होता है। लेकिन उसी पॉइंट पे मैं बोल रहा हूं कि आप जो मीडिया चैनल्स के ओनर्स हैं और एंकर्स हैं, उनको समझना चाहिए कि वो कैसे अपने रिपोर्टर्स को ऐसे रिस्क जोन में भेजते हैं। ऐसे लोगों के अंदर क्यों ऐसे फीलिंग्स है, बिल्कुल नहीं मानना चाहिए। कोई भी वायलेंस का इस मूवमेंट में या कोई दूसरे मूवमेंट में और इस देश में कोई स्पेस नहीं है। ये हम लोग क्लियर कर देना चाहते हैं। सिमरन बताइए। Out of all these people who are not even a part of community as of now, it is not clearly established. Are you guys going to testify against those FIRs that have lost? Many people who have been identified. अगर हिंसा हुई है, हम लोगों ने अभी जो भी आज सरकार से अलाइनमेंट हुआ है, क्योंकि अभी तक हमारे पास FIR की कोई भी कॉपी नहीं है, कोई भी FIR की कोई भी कॉपी अभी तक हमें मौजूद प्रोवाइड नहीं कराई गई है। लेकिन जो सरकार से अलाइनमेंट हुआ है कि हमारी प्रोटेस्ट 20 जुलाई का इवेंट और उससे पहले के जितने भी दिन थे, और पिछले कुछ दिनों में अगर किसी भी प्रोटेस्ट को लेकर अगर कोई FIR लॉन्च हुई है तो उसको विड्रॉ किया जाएगा। ना सिर्फ दिल्ली पुलिस द्वारा बल्कि पूरे देश भर में अलग अलग जगहों पर भी अगर FIR हुई है तो उन्हें विड्रॉ किया जाए, और फ्यूचर में कोई भी ऐसी FIR या कानूनी कार्रवाई प्रोटेस्टर्स या ऑर्गेनाइजर्स पर ना करी। बाकी जो डिटेल्स हैं वो एक बार अगर हमें FIR की कॉपी मिलेगी, रिटर्न स्टेटमेंट सरकार से मिलेगा तो हम इस बारे में असामाजिक तत्व जिन्होंने हिंसा के खिलाफ पुलिस एक्शन ले। आप दोनों से सिर्फ एक क्वेश्चन है, आप लोगों ने जैसे अभी यहाँ से कहा है कि मीडिया के साथ बदतमीजी हुई वो नहीं होनी चाहिए थी, क्या यही बात आपको जब मंच से नहीं कहना चाहिए था? I think ma'am, if I may answer this question, हम लोग मैम, मैं खुद 37 दिन से मंच संचालन कर रहा हूँ। डेली मैं खुद 5 बार अनाउंसमेंट करता हूं कि हमें शांति बना के रखनी है, हमें मीडिया से बदतमीजी नहीं करनी है। ये हम लोग खुद अपने लेवल पे इंश्योर किए। और जैसा कि हमने बोला किसी भी प्रकार की कॉकरोच जनता पार्टी के किसी भी प्रदर्शन में, किसी भी आंदोलन में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। हम लोगों ने पहले दिन से सिर्फ और सिर्फ 2 चीजें मेंटेन की है कि हम लोग पीसफुल रहेंगे और हम संविधान से चलेंगे। BBC एक मिनट BBC प्लीज। हाँ अच्छा, ओके, और कोई क्वेश्चन? एक मिनट रुकिए, ये पूछ रहे हैं। एक मिनट How do you see that? Do you think this is about the youth? How did you react? Did you expect them in the start? We were very clear from day one that when the youth unites, then whatever be their demands and rational demands, they will have to be accepted, because the government serves at the pleasure of the people. If people demand something, the government should have listened from day one. When we started the sit-in protest on June 20th, we did go to the police, and even after that we did go to the police and said that please open a communication channel with the government, we would like to talk to them. But that the government only reached out 30 days later was not too good. However, the talks could have happened
before that because we were all for talks. Do you believe this could have been organized better? It was very well organized. You have already answered him. एक मिनट सबका क्वेश्चन लेंगे आप। पार्टियों ने आप लोगों का बहुत साथ दिया और ये हालांकि राहुल गांधी जंतर मंतर नहीं आए, पार्टी का वोट कैसे देखते हैं सुनाई नहीं दे रहे। अरे आप शांति बना के सवाल सुनने दीजिए। अब सुन नहीं पा रहे तो फिर क्या फायदा। हाँ जी सर। अपोजिशन पार्टियों ने आप लोगों का साथ दिया, किसान सड़कों पर है, जमीन पर बैठे हैं, राहुल गांधी ने उनके रोल को आप कैसे देखते हैं? और एक श्रेय लेने की भी होड़ है कि भाई हमने किया है, संसद को बिठा करके रखा है, उनके रोल को इस पर आगे। नहीं सर, हम लोग श्रेय के लिए तो ये लड़ नहीं रहे थे, ये तो हम इस देश के बच्चों के लिए लड़ रहे थे। हम उन 21 परिवारों के लिए लड़ रहे थे जिन्होंने अपने बच्चों को खो दिया नीट का पेपर लीक होने के बाद। हम तमाम राजनीतिक पार्टियां, सामाजिक संगठन, किसान संगठन, दलित संगठन, महिला संगठन, एक्टिविस्ट, सिविल सोसाइटी का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने अपनी पॉलिटिकल एफिलिएशंस, पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज को पीछे छोड़कर देश के नागरिक के तौर पर हमारा साथ दिया। न सिर्फ जंतर मंतर पहुंचकर बल्कि जो भी उनकी बातचीत रही, जो भी उनका कार्डर रहा जिसमें उन्होंने बात फैलाई, तो उन्होंने जिन व्यक्तियों ने भी हमारा साथ दिया है हम उनका स्वागत करते हैं। और जिन भी संगठनों ने, पार्टियों ने अपने अपने लेवल पर भी लड़ाई लड़ी है युवाओं के मुद्दों को उठाने की, हम उनका स्वागत करते हैं क्योंकि पिछले 12 साल से ये हो नहीं रहा था। और हमें खुशी है कि कहीं ना कहीं कॉकरोच जनता पार्टी का एक बहुत बड़ा रोल रहा है इस देश के युवाओं को जगाने में और इस देश की जो पूरी पॉलिसी और पॉलिटी है उसको जगाने में। ये जो पीछे सर, हम लोग की जो शुरुआत हुई थी वो इस देश में अकाउंटेबिलिटी लाने के लिए हुई थी। उसका एक स्क्यू जो हुआ, जो सारा फोकस गया, वो गया नीट के पेपर लीक पे, क्योंकि जब ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ उसके जस्ट अराउंड नीट का पेपर लीक हुआ था। और फिर जो युवाओं का मुद्दा था वो आकर टिका शिक्षा व्यवस्था पर। शिक्षा व्यवस्था में भी एक बहुत सिंगल फोकस पॉइंट आया धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे पर। तो हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि एक प्लेटफॉर्म, हम ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना चाहते हैं जो सिस्टम को जवाबदेह बनाए, और जहां जेन्युइनली इस देश का युवा कंफर्टेबल फील करे अपनी आवाज रखने में। अब ये प्लेटफॉर्म क्या शेप और फॉर्म लेता है आगे जाकर, ये मुझे लगता है वक्त बताएगा। मैडम वाइट में जो मैडम है प्लीज। See, what we have definitely managed is to restore basic accountability in our democracy. I think it is historic. It is a big win for India, a big win for the youth of this country, and we have restored democracy today. So on August 15th this year, when we celebrate Independence Day, it will truly be about the youth, because we have managed what we haven't been able to manage in the last 12 years. दिलीप निषाद बोले पाकिस्तान के 400 सरेंडर काम कर रहे थे जिन्होंने इस प्रोटेस्ट के दौरान हिंसा। देखिए, दिल्ली पुलिस जो भी करे वो उनका काम है, उनको करना चाहिए, लेकिन आप सभी से रिक्वेस्ट है कि फॉरेन मिनिस्ट्री ने कल एक स्टेटमेंट दिया कि कोई भी फॉरेन हैंड या फॉरेन फंडिंग का कोई एंगल नहीं है सीजेपी का और इस प्रदर्शन में। तो प्लीज आप फॉरेन मिनिस्ट्री की भी बात सुनें। एबीपी सारी पॉलिटिकल पार्टी से अभी इस्तीफा हुआ, हालांकि आंदोलन आप लोगों ने शुरू किया था, लेकिन आप क्लेम कर रहे हैं कि उसकी वजह से धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा। तो कहीं ऐसा तो नहीं जो आप लोगों ने पूरा मूवमेंट शुरू किया उसका क्रेडिट अब हम कोई अपने लेवल पे लेना चाह रहा है? सर, हम लोग क्रेडिट लेने के लिए कर ही नहीं रहे थे सर। नहीं, हम लोग को क्रेडिट से कोई फर्क नहीं पड़ता है, जिसको क्रेडिट लेना है ले लें। देश का युवा बहुत समझदार है। ये वही युवा है जिसको 2 महीने पहले तक लोग डाउट कर रहे थे कि ये लोग सड़क पर आकर शांतिपूर्वक अपनी बात नहीं रख सकते। तो आप उन पे भरोसा रखिए, वो बहुत समझदार है, किसने क्या क्या किया है, किसने क्या नहीं किया है और कौन अब क्या क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहा है। बाकी हमें कोई
क्रेडिट लेने की होड़ नहीं है। आई थिंक वी हैव मेड आवर पॉइंट। ये इन सर्कल आपने जो वेबसाइट बनाई जिसमें पुलिस वालों की जो तस्वीरों का जिक्र आप कर रहे हैं, उसका क्या है, और क्या उसी वेबसाइट पे उन शरारती तस्करों की फोटो भी अपलोड की जाएगी जिन्होंने बीजेपी का प्रदर्शन खराब करने की कोशिश देखिए, की? हमने- सवाल इसके ताकि आगे कोई प्रदर्शन हो और लोग उन शरारती तत्वों से सावधान रहें। देखिए, जो हम लोगों ने स्टेट से अनाउंसमेंट किए हम उसमें अमल करेंगे, जो हम लोगों ने वादा किया उस पर अमल करेंगे, एंड आगे की जो रणनीति होगी अभी हम लोग सब वापस जाके जो कोर टीम है हम लोग डिस्कस करेंगे एंड आगे लेके जाएंगे इस आंदोलन को। ठीक है, I think we'll have to give bye to everybody. தங்களது கோரிக்கைகள் நிறைவேற்றப்பட்டதால் போராட்டத்தை திரும்பப் பெறுவதாக கரப்பான் ஜனதா கட்சியினர் அறிவித்திருக்கிறார்கள். ஜந்தர் மந்தரில் போராடும் இளைஞர்கள் அனைவரையும் தங்கள் வீடுகளுக்கு செல்லுமாறு அவர்கள் வேண்டுகோளும் விடுத்திருக்கிறார்கள். தமிழ் மேட்ரிமோனி ஆடி ஆஃபர் இப்ப மெம்பர்ஷிப் எடுங்க, ஆடியில ஃப்ரீயா யூஸ் பண்ணுங்க.